Hendrik would be 10 years old in 10 months. All his life he had heard about the dikes. He knew that a big part of Holland, his homeland, lay below the level of the sea, and the only things that protected it from being flooded were the dunes and dikes. The dikes, which were made by humans, were the most important. From very long ago, Hollanders had put up great mounds of earth and sod to save their land from the tides. It was a cruel war between the rising of the sea and the strength of the dikes, and for many years the sea threatened to win. But the Hollanders loved their country and would not allow the sea to drive them out from there. They fought back the waters that roared in from the North Sea. They protected the soil with longer and larger dikes, using barriers of clay and stone as well as bricks. Hendrik's grandfather had been a dike builder. His father looked after dike repairs. His uncle was in charge of a polder, an area of reclaimed land, surrounded by dikes. Hendrik admired the way the dike was constructed, its tall, grassy flanks, and the great stone blocks on the seaside, put there to break the violence of the onrushing waves. He would imagine himself standing on the wall, as if it were a rampart, and would give a victory call to the sea. He would make expeditions into the countryside, exploring the turns and twists of the walls, examining the ways in which they were built, trying to guess their age. One day, he roamed further than he had ever gone, much further than he had intended. The sky was darkening when he turned towards home. There was no time to watch anything except the shady, unfamiliar road. It was a still, chill, stormy evening. The birds had gone to their nests. There was no sound in the air except Hendrik listened intently. He did not want to believe what he heard, but he knew only too well what it was. It was the sound of water. Nothing much, only a trickle, but Hendrik knew what it would mean. He knew that the trickle would soon become a gurgle. Then there would be a gush, followed by a rush, and then a roar, and the North Sea would sweep in. For a moment, he stood bewildered. It was growing dark, hard to see, harder to locate a small leak in the dike. Finally, he found it, a few feet from the ground. He could reach it. It was, as he suspected, a small leak, small enough to be stopped with one finger. At first, he was not worried. He even felt a little heroic, elated to see that the finger of one small boy could hold the mighty waters in check. Besides, he thought, it would not be long. Someone was sure to pass by, see what was happening, and get people to repair the damage. But the stillness continued. Stillness and loneliness. As the night came on, Hendrik grew colder. His hand pained him. There were cramps in his arm. Soon his entire side felt numb. He could not tell how long he had hunched there. Hours seemed to pass. He called and cried, but there was no answer. No help came. The pain frightened him, but he could not take his finger from the dike. The air was freezing. He was afraid he would drop from fatigue. He stamped his feet to stamp out the cold. He rubbed his still arm with the fingers of his other hand to keep the blood flowing. He was dizzy. Pain stabbed every part of his body, but he would not remove his finger from the dike. It was almost dawn when he saw the man with the lantern in his hand. Hendrik almost fainted. It was a laborer returning after working all night. Hendrik's parents had been searching for him all night, but it was this laborer who found the boy. He immediately called for help. The leak was plugged soon. The dike was strengthened in weeks. A great part of Holland was saved. Years passed, and many things were forgotten, but the country is still grateful to the boy who kept his finger in the dike.
कोई इम्पॉसिबल चीज़ करने के लिए ना उम्र की ये नहीं रहती, सीमा नहीं रहती है। आज ऐसी कुछ स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए, द बॉय हु सेव्ड हॉलैंड। हाँ भाई, एक छोटे से बच्चे ने हॉलैंड को बचाया था। उसका नाम था हेनरिक, और हेनरिक अपनी उम्र के 10 साल पूरे करने वाला था, वो भी 10 महीनों के बाद। यहाँ पे देखिए, ये उसका हॉलैंड जो गाँव है, ये गाँव मतलब ये सिटी है, ये कंट्री है, और इसके आजू बाजू में आप देख सकते हैं कितना बड़ा समंदर है। और इस समंदर को रोकने के लिए ये जो बड़ी सी दीवार है, ये हमेशा बनाई जाती थी, एक बांध बनाया जाता था। और हॉलैंड के जो पीपल है वो दिनों दिन इसको मजबूत करते रहते थे, बिल्कुल रोज़ ही मजबूत करते थे। क्यों? क्योंकि ये समंदर का जो पानी है, ये अगर इन घरों के अंदर घुस गया तो इनकी सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, और ये समंदर इसे पूरे का पूरा बहा लेके जाएगा। ऐसे ही होने वाला था, क्योंकि ये जो आइलैंड यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, ये इन्होंने खुद बनाया था। तो यहाँ का पानी जो है, ये दिन ब दिन इसकी जो क्वांटिटी बढ़ रही थी, इसको रोकने का यही तरीका था। तो हेनरिक के जो ग्रैंडफादर है, वो ये जो फादर है, ये रिपेयरिंग का काम करते थे। उसके अंकल जो है, ये पोल्डर थे, ये भी डाइक्स का बनाने का काम करते थे। और हेनरिक जो है, ये दिन ब दिन इनकी मेहनत देखता रहता था कि ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं वो। और इनका जो इतना ब्यूटीफुल ये हॉलैंड जो कंट्री है, इसको अच्छा रखने का, सब चीज़ें करने का इनका सपना रहता था। कभी कभी तो वो सोचता था कि जैसे कि वो उस वॉल के ऊपर खड़ा रह के उस समुंदर को बोले कि देखो समुंदर, हम इंसान होने के बावजूद भी हम तुमसे एक कदम आगे है, हमने तुम्हें रोक के रखा है। ऐसे कुछ वो बताना चाहता है। एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही घूमते 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 आगे जा रहा था, और उसे पता भी नहीं चला कि कब सुबह से लेके वो शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई, और वो चलता ही रहा। तेज़ हवाएं बहने लगी थी, इवनिंग का टाइम था, और अचानक से उसने देखा कि हवाएं ज़ोर से, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चिड़िया भी अपने घरों में जा चुकी थी, अपने बच्चों के पास। लेकिन हेनरिक जो है, ये बेचारा, अब उसे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। अब अगर मैं यहाँ से वापस जाने की भी कोशिश करूँगा तो मैं घर नहीं जाऊँ। तब भी उसको आवाज़ आया कि जैसे कि कुछ बूंदे, जैसे कि कुछ पानी, जैसे कि उसका जो हॉलैंड है वो पानी के बीच में समा जाएगा, ऐसे उसे महसूस हो रहा था। ये जो फीलिंग है, ये इसको बिल्कुल ही ये सोचने के लिए मजबूर कर रही थी, घर जाने से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या चालू है। और उसने जब देखना शुरू कर दिया, आप समझ सकते हैं कि रात का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो ये वॉल को हाथ लगा के देख रहा था। और तभी उसे पता चला कि उसकी फिंगर जहाँ पे है वहाँ से ही वो पानी की धारा निकल रही थी। उसने सोचा, अरे बाप रे, अगर मैं ये फिंगर निकालूंगा। उसने उस छेद में वो फिंगर को डाल दिया, अपनी एक उंगली को डाल दिया, पानी रुक गया। उसे हैरानी हुई कि इतना बड़ा समंदर का पानी एक छोटी सी उंगली से रुक गया, लेकिन अगर मैंने ये उंगली निकाल दी तो फिर क्या होगा। लेकिन उसे पता था कि यहाँ पे रिपेयर करने वाले जो लोग हैं, ये कंटिन्यू यहाँ पे आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ी देर में कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए आएगा, नहीं तो कोई तो आदमी उसे देख ही लेगा, और फिर वो इस उंगली को निकाल के वहाँ पे रिपेयर करने के लिए बोलेगा करके। और वो वेट करने लगा कि कोई तो इंसान उसे देख लेगा, लेकिन नहीं। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाई, कोई है, कोई हेल्प करेगा मेरी, कोई है, लेकिन कुछ भी नहीं। अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था, कहीं ये उंगली मेरी उंगली से बड़ा ना हो जाए। और ये जो हवा है, ये जो इतनी जोर से बहने वाली हवा है, ये बहुत ठंडी हवा थी, इसके कारण वो बीमार पड़ने वाला था। उसके हाथों में दर्द भी होने लगा था। वो कंटिन्यू ऊपर हाथ रखने के कारण, एक उंगली वहाँ से दबाने के कारण उसका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो भी अच्छे से नहीं हो रहा था, वो रब करने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी जो है, ये लैंटर्न मतलब दिया जो रहता है, वो दिया लेके आ रहा था। उस आदमी ने देखा यहाँ पे इसके पापा जो है, पापा भाई, ये भी उसे ढूंढ रहे थे। उस आदमी ने इसे देखा, तब तक ये बेहोश हो चुका था। उसने तभी देखा, अरे बाप रे, ये उंगली अगर हट गई तो पानी। उसने तुरंत उसे रिपेयर करा दिया, और इस तरह से हॉलैंड समुद्र के बीच में समाने से बच गया। आज बहुत साल हो गए हैं, फिर भी ये जो छोटी सी चीज़ आप जिसे बोल सकते हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अब मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। और ये कंट्री आज उसी के कारण जिंदा है।
है। आप लोगों ने पूरी कहानी तो सुन ली है, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत बहुत अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो है या इस चैनल पर देखा कीजिए।